In Delhi, among people, they don't think that dusky people are beautiful. For them, only fair girls are very pretty. I wanted to prove, yes, I am you. Life में दो तरीके होते हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। पहला, आप दूसरों की गलतियां देख के सीखो, उसका कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप खुद गलती करो, फिर सीखो, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कैसे सीखना है। RGV taught me one very good lesson which I think all the actors out there, this is in your hand, that how you want to look on screen. No director can teach you. I just recently went for an ad audition. उसमें you know what I had to do? I just had to sleep for 5 seconds. What? उसके लिए क्या ऑडिशन लेना था कि ये एक मैदान है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो तब तक जब तक आप जीतते नहीं हो। तो जितने लोग हैं ना, सबसे पहले तो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। दे विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, बिचिंग अबाउट यू, एंड देन ग्रेजुअली जब आप खड़े हो और आप हारने कोई रेडी नहीं, तो धीरे धीरे दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली कि नहीं यार, इसमें कुछ तो है। जितनी एक्ट्रेसेस आती होंगी बाहर से, कई तो सिर्फ स्टार्स बनने आती हैं। इफ दे आर रियली विलिंग टू बी एन एक्टर, तो दे शुड। कैसी है कृष्णा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। I would like to start with the thing you are looking hot. Thank you, but not more than this. हाँ चलिए, मैं काम पे आता हूँ। मुझे बताइए, दिल्ली की एक लड़की मुंबई आई, नाम बनाया, उस कोशिश में जुटी और वो सारा प्रोसेस चल रहा है ना। दिल्ली से मुंबई आने का फैसला क्या था? घर वाले कैसे थे जब उनको बताया कि मुझे एक्टर बनना है? उनका क्या कुछ रिएक्शन था? मुंबई आके इनिशियल डेज कैसे थे? To be very honest, when I was in 6th standard, because see, I was very simple looking girl, dusky. So in Delhi, no, this is a very famous thing among people, public, common public. They don't think that dusky people are beautiful. For them, only fair girls are very pretty. Correct. So I think this, I am very egoistic again. So Ego. yeah. हाँ जी, So ठीक है। this thing, had hit me. ठीक है। कि so I was just thinking, I was very good in studies, I was topper. So I was just thinking कि what is the most difficult profession in the world, which is not in our hand. So I came to one conclusion that you can become IAS officer, you can become doctor, engineer if you study well. But this can only happen if this is in your destiny, right state of mind and right strategy. And it's the most difficult profession ever in the whole world, in universe. So first thing why I choose this, I like challenges, and second, I wanted to prove, yes, I am beautiful. So my father was in CBI. Earlier days he used to Father was in CBI. And he was very strict, so he was like, कि हमारे खानदान की लड़कियां ये सब नहीं करेंगी. Typical Bollywood dialogue. हाँ जी. So I was like, so I'm the youngest child. So अपनी जिद तो मैं पूरी कर ही लेती हूँ. ठीक है. So one day I just decided कि I don't want to continue my studies now. So 12th में I proved myself. CBSE बोर्ड में टॉप किया, and then college में भी I was very good in studies. But second year somehow I started feeling that this is not where I belong to. Okay. I have to go to Mumbai, and that time he became little humble also. So he told me while coming to Mumbai, he just told me one small lesson he wanted to teach me. He said कि see, life में दो तरीके होते हैं जिनसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। पहला, आप दूसरों की गलतियां देख के सीखो, उसका कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप खुद गलती करो, फिर सीखो, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कैसे सीखना है। सो आई केम हियर, एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी इनिशियली, वेरी एक्साइटेड। और तुरंत, कब की बात है? कितने टाइम पहले मुंबई आए हो? I came Mumbai in 2017. 17, ठीक है. Yeah, and 2018 में I was doing film with RGV. So I thought कि it was written in my destiny. It means I came here, I got a big film, and then we were in talks with other films also. So I thought कि हो गया अभी. I will become what I wanted to be. But then gradually things turned towards something very, वो लेसन सीखने वाले मोड पे. खुद हाँ, सीखो. बहुत सारी बहुत गलतियां की हैं, बहुत.
मैं गलतियों के बारे में भी बात करूंगा ताकि हम्म। मैं दूसरों की गलती से मैं भी सीखूं, है ना, आपके पापा की बात मानूंगा मैं। Yes. बट मैं वापस आता हूँ इनिशियल फेज पे। 2017 में मुंबई आए। जब मुंबई आए थे तब आरजीवी की फिल्म 12 o'clock जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फाइनल हो गया था। यहाँ पे आके आराम नगर के चक्कर लगाए, कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, तब फिल्म मिली। उसका प्रोसेस क्या था? Beginning में I was not in a hurry. हम्म, Honestly, I was just meeting a few friends here. Jassi is very good friend. ठीक है। So here, when I came here, wherever he was going, he used to text me कि आजा। किथे है, आजा चल तेरे को मिलाता हूँ कुछ लोगों से। ठीक है। तो बहुत इमेच्योर भी थी, तो जाती थी तो समझ नहीं आता था क्या बोलूँ, किससे कैसे बात करनी है। बट आई हैड वन मॉडल फ्रेंड, he is doing really good right now in South industry. So one day we were just sitting and he said कि okay, ये लो numbers, आजमा लो अपनी किस्मत। तो मैंने कहा ओके, एंड ही गेव मी many contacts. सो नेक्स्ट डे मैंने सबको अपना प्रोफाइल भेजा, फोटोज भेजे, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्ड आया। देन आरजीवी कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस। व्हेन आई वेंट देयर ही सेड कि ओके वी आर डूइंग द फिल्म। ऑडिशन हुआ? सो ऑडिशन के लिए 1 मंथ तक मैंने फॉलो अप किया था, एक कमिटमेंट के बाद भी, क्योंकि Okay. उन्होंने कहा था कि पहले हम लुक टेस्ट लेंगे, ऑडिशन ठीक है, लेंगे। ठीक है। तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग अप कि कब कर रहे हैं ऑडिशन। सो वन डे मे बी इरिटेट होकर उन्होंने बोला होगा आई विल सी यू ऑन द सेट। सो सेट पे ही पहले दिन ही उन्होंने बहुत बड़ा सीन उठा के दे दिया कि ये करो। कौन सा सीन था, किसके साथ था? मिथुन इट के वाज विद या- मानव कौर। ठीक है। द फर्स्ट सीन वाज वेरी डिफिकल्ट हम्म, एंड पता नहीं बट हो गया, वन टेक में ही हो गया। हम्म। देन वी कॉल्ड इट। मुझे बताइए, जब आरजीवी है ना, जिनका काम हम लोगों ने देखा है, पसंद करते हैं इतना, और उनकी पर्सनैलिटी उनकी फिल्मों से बहुत अलग है, जितना मैं उनसे मिला हूँ या बाकी चीजें नोटिस की हैं। जब एज ए डायरेक्टर वो रहते हैं ना कैमरे के पीछे, कैसे गाइड करते हैं, कितना डांटते हैं, कितना प्यार से बताते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितने रीटेक्स लेते हैं, क्या कुछ चल रहा होता है सेट पे? बहुत शांत डायरेक्टर हैं, एक बार भी नहीं डांटा है। Okay. इनफैक्ट एक दो सीन्स थे जो मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, उन्होंने पूरा इनैक्ट करके वीडियो बना के मुझे भेजा, 1-2 दिन का ब्रेक दिया कि प्रैक्टिस दिस वे, और उसके बाद फिर व्हेन यू आर रेडी तब शूट करेंगे। तो इतना सपोर्ट किया, और इनफैक्ट सेट पे एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता था। मकरंद सर एंड दिव्या मैम, इनफैक्ट मिथुन दा भी, हम लोग बैठते थे तो मतलब यू नो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि देयर इज यू नो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। वी ऑल वर्क लाइक अ फैमिली। बट हाँ, एक बार आरजीवी ने मुझे डांटा था मैंने आस्क्ड हिम कि यू हैड लंच, so I was like, don't ask me about good morning, good night, lunch. He doesn't like these questions, no. Okay. He doesn't like how are you. He doesn't like did you have food or no, because I just had lunch and he was sitting in front of the screen. ठीक है। So just out of concern, because he was working since morning, I just blurted out that did you have your lunch. Makaran sir was sitting there. He said, I don't like these बट kind of ये तो हम questions. लोगों को जो जितना मुझे समझ, ये तो बेसिक एटिकेट्स है ना, किसी से पूछना खाना खाया है नहीं, तबीयत But ठीक है नहीं, he is हाउ आर like यू। this. If you say good morning to him, हाँ, he won't talk. Yeah, so ओके। मैं अगर फिल्म के बाकी कलाकारों की बात करूं, एक्टर्स की बात करूं, जितने हैं सब ऑलमोस्ट लाइक लेजेंड। जितनी हमारी एज है, 2-3 साल का, 2-3 दशकों का उनका एक्सपीरियंस है। मिथुन हो गए, मकरंद साहब हो गए, दिलीप ताहिल हो गए, जितने ये सारे लोग थे, इनके साथ काम करना, इनका एक्सपीरियंस शेयर करना, इनके साथ स्क्रीन पे रहना, कुछ ऐसा हो कि अच्छा ये वाला सीन तुम ऐसे कर लो, या कुछ किया हो बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छा था, वो पूरा ऑन सेट चीजें इन सब के साथ। I think everybody was doing their job. They were not interfering in anybody's performance. Once Manav had told me that you can be more better. So work on this. And RGV taught me one very good lesson, which I think all the actors out there, outsiders, they should know. That he said ki, you know what, this is in your hand, that how you want to look on screen. No director can teach you. So you have to decide that if you want to look good, so you have to decide how you are going to present yourself on screen. Because see, you'll get a dialogue, but how you're going to deliver it, this director cannot teach you in intake, like inject नहीं कर सकता है कोई. मैं आपकी एक और फिल्म रही है प्रेमियो, उसके बारे में कुछ बात करेंगे?
कुछ बताएंगे उसके बारे में? प्रीमियम आई थिंक बहुत एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में, ठीक है। and lockdown में travel was It's also a not Tamil allowed. film, right? Yeah, it's a Telugu film. तेलुगु फिल्म, सॉरी, ओके। And डायरेक्टर की थर्ड या फोर्थ फिल्म थी ये, बट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, so that's कितने why I टाइम पहले don't. शॉट हुआ है फिल्म? 2020 में shoot किया था. एंड जो टीम है, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स से कुछ बात होती है कि क्या अटका है, क्यों अटका है, या करके भूल गए? नहीं नहीं, he wants to release it, but he is very attached to his project, so he wants to do it in a best way. But I believe कि आपने अगर कुछ कर लिया है तो आप उसको फिर कर दो रिलीज, करेक्ट। जैसा भी हो. हाँ, क्योंकि ऑडियंस बहुत जल्दी बदलती है। आप Yeah. 3-4 साल पहले अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया, मे बी अब ऑडियंस बदल गई हो, उस फिल्म का फीस मिला? हाँ, ठीक है, वो I अच्छी think- फीस मिली. हाँ, वो एक्टर्स के लिए बहुत Yeah. जरूरी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं यार पैसा ही नहीं मिला, काम तो करवा लिया। नहीं नहीं, अच्छा फीस भी अच्छी मिली, एंड ट्रीटमेंट वाज गुड, स्टे इन होटल, एवरीथिंग वाज रियली गुड. मैं अगर वापस आऊँ आपके पापा की बात पे, है ना, एक चीज थी कि दूसरों की गलतियों से सीखो, जो आपने शायद कम किया, आप ही बोल रही हो, और दूसरा था गलती करके सीखो। बताइए, जो आप बोल रहे थे ना बहुत गलतियां की हैं मैंने, क्या क्या लाइफ हाँ, की गलतियां क्योंकि रही मैं हैं? यंगेस्ट चाइल्ड हूँ, तो बहुत ही रिजिड रही हूँ लाइफ में, और ईगो बहुत है. ईगो अगेन, सी आई बिलीव कि जो प्लैनेट्स है ना वो आपको नहीं छोड़ते हैं. प्लैनेट्स का जो नेचर होता है आपके हॉरोस्कोप में जैसे प्लेस्ड होता है, यू बिहेव दैट वे. आई स्टार्टेड बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी आफ्टर एनालाइजिंग दीज थिंग्स. ओके, सो आई माय मार्स इज प्लेस्ड इन माय लग्न. ठीक है। So, जब मेरी जानकारी इन सब चीजों में थोड़ी कम है, नो, तो मैं आपको इसलिए बेहतर बता रही हूँ एक्सप्लेन कि करना मैं पड़ेगा। हाँ, मेरा मार्स इज फायरी प्लैनेट ना, ठीक इट्स है। अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट, एंड ठीक इट्स है। इन माय लग्न. सो लग्न इज हाउ योर बिहेवियर कैरेक्टर इज. So Okay. that's why I'm energetic. I can be a very good leader, and I will always look young, even in my old days. So he knew it somewhere that I'm very aggressive, and in aggression I make mistakes. So, and this happened. I lost many people. I lost many projects. I lost many things in my life just because of my aggressive behavior. So right now I'm just trying to calm. क्या क्या प्रोजेक्ट छूटे? आपने बोला आई लॉस्ट मेनी प्रोजेक्ट्स। बहुत बहुत. बोनी जी के साथ एक बोनी कपूर, हाँ, ठीक है। बात चल रही थी, प्रियदर्शन सर डायरेक्ट करने वाले थे, सो वो थोड़ी शेयर हो गई ओके, बिकॉज ऑफ दिस, एंड अदर मेनी. आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बट या. ओके। इंटरव्यू के पहले हम लोग जो बात कर रहे थे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, स्पिरिचुअल वाली चीजें, मुझे जरा ये समझाइए, अकॉर्डिंग टू यू सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज कुछ नहीं होती है? नहीं होती ये. आई थिंक एवरी ह्यूमन वांट्स मोर रिस्पेक्ट एंड अटेंशन फ्रॉम एवरीवन. सो उसका ईगो है कि आई वांट अटेंशन, सो रिस्पेक्ट मी. बट इफ यू आर रियली अ गुड पर्सन एंड ग्राउंडेड पर्सन, बिकम जीरो. तो ईगो खत्म हो जाएगा ना. ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में थिन लाइन है. और आई थिंक इसलिए मुझे नहीं पता कि पहले की लाइफ कैसी होती थी यहाँ पे, बट अभी आई सी पीपल अराउंड मी, दे ब्रेक रिलेशनशिप्स इन स्मॉल फाइट्स, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फैमिली से लोग फैमिलीज आर गेटिंग अपार्ट. हाँ, तो आई थिंक ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक फॉर लाइफ. अरे वन डे यू विल डाई, देन मे बी वो मेमोरी भी नहीं रहेगी आपके सिस्टम में कि कोई ऐसे इंसान से आप कभी मिले भी थे. सो व्हाई टू कीप इट? दिल टूटा है बहुत बहुत टूटा है. बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। So I think सेम योर दुखती रथ पे हाथ फेरना ये. सो हाँ, दिल टूटा है. एंड जो ईगो वाली बात बोले थे, कभी लगा कि यार मेरी गलती रही है, फिर नहीं भाई तू ही गलत था? See, मुझे नहीं पता जिनसे ब्रेकअप हुआ है शायद वो लोग भी ये वीडियो देखें कहीं ना कहीं, गॉड नोस. गलती मेरी रही है, इसलिए मैंने सामने से इनिशिएट करके एफर्ट करके सॉरी भी बोला है. बट कहते हैं ना कि शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है. तो जितनी मैं अग्रेसिव हूँ, मैंने हमेशा लाइफ पार्टनर भी उन्हीं लोगों के लिए अट्रैक्ट हुई हूँ जो मुझसे भी ज्यादा अग्रेसिव रहे. सो वहाँ पे आई बिकम लाइक वेरी काम, और देन आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक्स आफ्टर मीटिंग अग्रेसिव पीपल इन माय लाइफ कि what we can lose in aggression.
So this lesson I got from my relationship. ओके, अभी सिंगल, कमिटेड? अभी single. ग्रेशन के चांस शायद मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, गॉड नोस। ठीक है, हाँ। इंस्टाग्राम कितना जरूरी है आपके लिए, एंड हाउ डू यू सी योर इंस्टाग्राम? एंड जो बोलते हैं ना कि आजकल फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग हो रही है, बहुत बार फैन मूवमेंट्स होते हैं, बहुत बार ट्रोलिंग होती है, बहुत बार लोग अपनी एक हद भूल जाते हैं आपके लिए कुछ भी बोलने के लिए, ये सारी जो चीजें हैं, हाउ डू यू सी ऑल दोस थिंग्स? यार ये बहुत अनफेयर हो रहा है एक्टर्स के साथ कि इंस्टाग्राम देख के कास्ट किया जाता है। आप ऑडिशन ले रहे हो और ऑडिशन में भी आप एक सीन में कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन पूरी फिल्म को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप एक छोटे से और छोटे छोटे सीन्स के लिए ऑडिशन हो रहे हैं जिसके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आई जस्ट रिसेंटली वेंट फॉर एन एड ऑडिशन। उसमें यू नो व्हाट आई हैड टू डू, आई जस्ट हैड टू स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स। What? उसके लिए क्या ऑडिशन लेना था? मतलब देयर वाज अ बुक केप्ट हियर एंड मुझे सिर्फ बुक को लेकर ऐसा सुना था। That's it, 5 seconds. So I was shocked and I asked casting director कि इसकी क्या requirement है? तो नहीं वो इसकी requirement इसलिए है कि हमें पता चलेगा कि ये सीन कर पाएगा। मैंने कहा बट ये तो बहुत बेसिक सीन है, इससे बड़े सीन्स हमने किए हुए हैं, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? और उसमें भी शॉर्टलिस्ट किया। मेरी ट्रिप थी, ट्रिप कैंसिल करवाई और लास्ट में किसी और को चूज कर लिया। सो दिस हैड हैपेंड जस्ट रिसेंटली। कास्टिंग डायरेक्टर से मुझे दो चीजें याद हैं। एक तो आपने बोला ना कि शॉर्टलिस्ट किया है, कोई और सेलेक्ट हो गया है। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा रोल है जो किसी स्टार के या किसी फेमस जिसके अच्छे फॉलोअर्स वाले रहे उसकी वजह से रिप्लेस कर दिया गया हो आपको? नहीं। एंड सेकंड चीज, जो बाहर से लड़कियां आती हैं एक्ट्रेस के इरादे से, वो सबसे ज़्यादा फेस करती हैं दो चीज़ें। एक होता है फिजिकल उनको अप्रोच करना सेक्सुअली, सेकंड चीज़ फाइनेंशियल स्कैम्स कि हमारा पोर्टफोलियो करवा लो हमसे, हमारा कार्ड बनवा लो, ये फिल्म दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। ये दो चीज़ें, कभी इन दोनों में से किसी एक चीज़ में फंसे या किसी में भी? बहुत बार हुई है ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें, बट इनको मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं है क्योंकि नॉट इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक फीमेल्स फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एवरीवेयर इन ऑल द इंडस्ट्रीज। अगर सी इफ अ मैन लाइक्स अ वुमन, they can express कि okay we like you and we want to be any kind of form. फीमेल ने मना कर दिया, बात वहीं पे खत्म हो गई। हमारे इंडस्ट्री की खूबसूरती है ये। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में, अदर सेक्टर्स में, ऑफिसेज में एंड बाकी प्रोफेशन में तो वुमेन को इतना मजबूर कर देते हैं कि आपकी जॉब तक जा सकती है, बट यहाँ पे वो नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं सुनता हूँ वो ये होता है कि ठीक है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो ही ये रोल आपको मिलेगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे। वो कभी मेरे साथ मैंने फेस नहीं किया है, तो आई कांट एग्जैक्टली। बेहतर है नहीं किया हो, ना ही कभी ऐसा हो। और क्या कुछ मतलब ऐसे 2-4 बार हुआ भी है ना, अगर काम नहीं भी मिला तो मुझे फर्क नहीं पड़ा है बिकॉज आई सेड I am a leader. I started my own production, own music company. I have no time right now to even think that how to get to work because I have created so much for me. So वो फर्क ही नहीं पड़ा है। और इंडस्ट्री में आई थिंक परसेप्शन भी चेंज होता है when you are। हाँ, आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि ये एक मैदान है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो तब तक जब तक आप जीतते नहीं हो। तो जितने लोग हैं ना, सबसे पहले तो आपको सीरियसली नहीं लेंगे, then they will start criticizing you, bitching about you, and then gradually जब आप खड़े हो और आप हारने कोई रेडी नहीं हो, तो धीरे धीरे they start taking you seriously कि नहीं यार इसमें कुछ तो है। और जब आप थोड़ा बहुत भी कुछ और बेहतर करने लग जाते हो, then they are there with you कि मतलब आप पार्ट बन जाते हो उसके। और वही लोग उधर मिलते ही रहते हैं आपको, सब मिलते रहेंगे आसपास। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जितनी एक्ट्रेसेस आती होंगी बाहर से, कई तो सिर्फ स्टार्स बनने आती हैं। इफ दे आर रियली विलिंग टू बी एन एक्टर, तो दे शुड कम विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी हाउ टू विन हियर, बिकॉज सी देयर आर मेनी फीमेल्स ट्राइंग टू गेट बिग रोल्स हियर एंड बहुत सारे स्टार किड्स भी हैं। और आई थिंक वो भी गलत नहीं है कि इफ टुमारो मेरा बेटा है या बेटी शादी के बाद अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें एक्टर, तो मैं तो सपोर्ट करूंगी ना। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नेपोटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड वो जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो शॉर्टकट लेती हैं फेम के लिए कि छोटे कपड़े पहन के पैप्स के सामने जाना, बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग रहना, सही समझ रहे हो, आपकी मुस्कान बहुत सारी चीज़ें बोल दे रही हैं। बहुत सारे नाम हैं जिसमें खुशी मुखर्जी, तान्या चटर्जी और समेत बहुत सारे।
हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है ठीक है ये सही है कि आपको फेम मिल जा रहा है, उसके बदले आपको कुछ ब्रांड्स मिल जा रहे हैं, पैसा आता जा रहा है, फिर नहीं यार आई वुडंट लाइक इट, आई वोंट डू इट? Can I be very honest with you? So because of these women, these females, जो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, जो अच्छा काम करना चाहती हैं, उनको भी लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं जब तक वो प्रूफ नहीं कर जाती खुद को कि वो वी आर डिसेंट. सो आई हैव ऑल्सो फेस दिस मेनी टाइम्स कि अगर कई बार तो ये बोलने में भी हेजिटेशन होता है कि आई एम एन एक्टर. ओके. जो सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस नहीं है उनको सोसाइटी बहुत अलग नजरिए से देखती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फीमेल्स. और आई थिंक इंस्टाग्राम को या पैप्स को इनको स्पॉट ही नहीं करना चाहिए ना इंस्टाग्राम को प्रमोट करना चाहिए. सीधा यहाँ पे भी वो एटलीस्ट कुछ रूल्स होने चाहिए कि यू कैन नॉट पोस्ट एक्सट्रीम न्यूडिटी. खुशी मुखर्जी, आई cannot bear this girl. Why media is spotting? They should stop. उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ हमारी नहीं है ना, मीडिया की भी है, जो स्पॉट कर रहे हैं उनकी भी है. तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कहीं पे भी अगर इंसल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज गर्ल्स, सो यार आई थिंक दे शुड स्टॉप. फेयर इनफ. यस. फैन मोमेंट बताइए मुझे आपका कोई. फैन मोमेंट? हाँ जी. कैसे किसी ने कुछ बहुत प्यारा कुछ कर दिया हो कि याद रह गया हो हमेशा के लिए? So, okay, I'm big fan. I have huge crush also on Agastya Nanda. Okay. I was just thinking that how and when I will meet him. Okay. And so I am the person जो जल्दी किसी की fan नहीं होती. I like people, but I'm not starstruck. But Agastya is not on social media. He's not on Instagram, and he is very fine actor. He's going to be the biggest star. I believe. Okay. So when I met him recently, I couldn't control. I just went there. I met him, and he shook hand for a while. So that was like यार हाथ ही नहीं धो 2-4 दिन. But obviously you forget. I am a huge fan of this guy. किसी फिल्म के लिए मुलाकात थी या रैंडम कोई इवेंट वगैरह? वगैरह? We just met in one award show. Hello award show. Okay. Yeah. हाँ, बट ये तो हो गया आपकी तरफ से किसी के लिए. बट आपके लिए कि कभी कोई ऐसा फैन मिल जाता है ना कि वो यू आर टू ब्यूटीफुल या वी हैव सीन योर फिल्म, वी लव योर इंस्टाग्राम, जो भी रीजन. I get so many messages on my Instagram for my performance and work. In real, it has happened, but it didn't made any impact on my head कि you know fan moment हो गया तो मैं बहुत खुश हो गई. क्योंकि inside I am very practical and grounded person. I know that I have not achieved a very big thing yet in acting. Maybe as a producer I'm doing good, as a writer I'm doing very good, as a social activist I'm doing super. But as an actor I need to prove more. 1-2 फिल्म से आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हो. So अगर कोई कहता भी है तो वो मुझे लगता है कि नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे ऑनेस्ट लोगों की जो चीज़ें सेल्फ रियलाइज कर सकें. क्या कुछ और आ रहा है एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर? क्या कुछ और अभी अपकमिंग प्रोसेस में है? अपकमिंग आई एम डूइंग वन एक्शन फिल्म फॉर ए स्ट्रेंजर. उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रही हूँ. And I think hopefully this year we'll complete our shoot, and 2027 we are going to release this. So this film is based on Rangers. Jim Corbett में shoot कर रहे हैं हम लोग. It's a nice film. And there is one horror film कहानी सुनो, which is see nowadays अभी horror भी proper horror नहीं आ रहा है, comedy horror. So audience horror की है काफी. तो वो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ और वो मैंने खुद लिखी है उसके. Okay. क्या कुछ कास्ट है उसमें? एज एन एक्टर भी हो या सिर्फ एज अ प्रोड्यूसर? एज एन एक्टर भी हूँ. और वी हैव पिच्ड परमृता चैटर्जी एंड आदिल, जिनको विधु विनोद चोपड़ा सर ने लॉन्च किया था इसमें शिकारा में. सो वी आर गोइंग टू डू इट. ग्रेट, थैंक यू सो मच. MM कीरामानी सर इज डूइंग म्यूजिक. व्हाट? या मुझे बताइए, जब ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसान, कीरवानी साहब का आपने जिक्र किया, जब इनको अप्रोच किया जाता है वो सब कैसे रहता है कि वो लोग मान जाते हैं इजीली या देखते हैं कि अच्छा नहीं ही इज नॉट सो बिग या ही इज सो बिग तो उस हिसाब से मैं चीजें सेट करूं? वो कैसे कीरवानी साहब से बेसिकली मिलने का पूरा I don't think if you're aware about it, Kiramani sir did music for 12 o'clock.
So Kiravani sir, हाँ. when he saw my performance, he still calls me Gauri. कैरेक्टर में हाँ. करेक्ट हाँ और वो बहुत एडमायर करते हैं. मैं हैदराबाद जब गई तो उनके सिस्टम पे डीपी लगा के रखी थी उन्होंने. So it was not that difficult, and he loves me so much. हो गया बस. नाइस Yeah. अमेजिंग थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आई होप टू सी यू सून Thank you so much. Thank you.